Recording in progress. Very good morning to all of you. I hope so my voice is clear. I'm audible to all? Yes, ma'am. Good morning. Okay. So from today, we will take the lectures of economics of labor market, which is for your same one. This paper covers 8 units. Nature of labor market 2, micro and macro approaches in labor markets, labor supply, wage issues in labor market 1, wage issues in labor market 2, labor market in 1, 2. These are the 8 units. For Marathi medium students, means there is not available the Marathi book now, right? Marathi medium student is here now, anyone? No issue. No one is here. Okay. And this is your syllabus. I hope so you read. Have you read? At least syllabus, not a whole book. I'm waiting for answer. Have you read the syllabus? No, ma'am. Okay, then in shortly we will cover here. Module first, nature of labor market, which covers 2 units. Means this module 1 distributed in 2 units, and syllabus is here, meaning and concept of labor, which will study in unit. So can we start directly from first unit now? Yes, ma'am. You can. Module 1, first unit, nature of the labor market, and these are the points which we will be going to cover in this unit. This objective and introduction, concept of labor markets, characteristics of labor markets, types of labor markets, certain labor markets, these points. So now I'm asking a question. The paper name is Economics of Labor Markets. Means for Marathi, श्रम बाजाराचे अर्थशास्त्र. ये आपको क्लियर हो गया? So can anyone answer what is labor market? Means simply you can answer. So I am Abhishek Desai. Yes. Yeah. So in my view, labor market typically is a place where employers have some demand and labor have some demand, and the demand is getting met. That is the place. So if the question will be asked in the your exam, external exam, give the definition of a labor market and this characteristics of it. This is the question. So what should you write there? तो क्या करना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मतलब सिंपली वहां पे अगर सपोज समझो कि वहां पे एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है, ऐसा अगर आया तो आपको 1 मार्क के लिए वहां पे वो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और 4 मार्क्स के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फीचर्स जो है वो आपको वहां पे लिखने पड़ते हैं. सो आपको एक 2-3 लाइन में उसके डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए. गॉट इट? Yes, ma'am. ऐसे टाइम में अगर आपको मतलब याद भी नहीं रहता है तो यू शुड रेसिटेट इट, द डेफिनेशन, वो आपको पता ही होनी चाहिए. सो इन द इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है, अ लेबर मार्केट इज प्लेस where workers and employees interact with each other. Actually, you are a labor. Means most of our students, our CDOE students are working. So you are a labor. You are working means somewhere, right? So you are a worker, and what is your your employer is there, means who gave job to you, right? So where you meet, whatever, means labor marketplace will be online and offline also. Got it?
Yes, इतना ma'am. आपको समझ में आया? मतलब लेबर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे काम करने वाले और काम देने वाले मिलते हैं, और वो किस लिए मिलते हैं? बिकॉज देयर इज टू रीजंस. एक तो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर. मींस डिमांड फॉर लेबर जहाँ पे मतलब लेबर श्रम की मांगनी रहती है और श्रम का पुरवठा रहता है, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम आवर साइड, सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर. Sharing and supplying. सप्लाई, एग्जैक्टली. और जो काम देते हैं उनको क्या रहती है? डिमांड रहती है लेबर की. तो डिमांड करते हैं और मतलब हम क्या करते हैं? काम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं. तो एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. मतलब यहाँ पे 2-3 हुए हैं, जैसे कि देखो, लेबर मार्केट डिफाइंस द मार्केट फॉर हायरिंग एंड सप्लाइंग लेबर टू परफॉर्म सर्टेन जॉब एट अ वेज रेट. जो कि वेज रेट मतलब क्या? जो आप काम करते हो, यू आर ए लेबर. मीन्स यू नो देयर मीन्स इन आवर इकोनॉमिक्स देयर आर 4 प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हिच आर actually it's a very simple and basic question. There are 4 production factors, which are land, labor, capital, entrepreneur. exactly land, labor, capital and entrepreneur. These are the 4 production factors. And means what does the production factor, क्या करते हैं? ये किसी चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट? तो ये जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो इनको एक रेम्युनरेशन दिया जाता है. उसका मतलब उसका मुबदला उसको देना ही पड़ेगा, राइट? तो लैंड को हम क्या देते हैं? लैंड को क्या देते हैं? रेम्युनरेशन, रेंट देते हैं. लेबर को क्या देते हैं? वेज देते हैं. जैसे कि आपकी सैलरी रहती है पर मंथ, किसी की पर डे, ऐसी भी सैलरी रहती है. वो आपका क्या रहता है? वेज रेट रहता है. कि अगर आप होल डे काम करोगे तो आपको पर डे 1000 रुपये मिलेगा, मतलब 2000 रुपये मिलेगा. उसके हिसाब से आपका महीने का हो जाता है, मतलब 45-60,000 ऐसा आपका सैलरी रहता है. व्हाट इज दैट? यू आर गिविंग योर सर्विस, right? You are giving your efforts in the production process of that company or that institute. That's why they are providing to this salary. And what is this? This is a wage rate. Oh, sorry. Yeah, that's why I ask a question about the production factors. Because labor is a one factor of production, right? Which is a human resource. So labor market can be defined as a process by which supplies of a particular type of labor and demand for that type of labor balance or seek to obtain a balance. एक आपको यहाँ पे 2 ध्यान में ही रखना है, labor demand and labor supply. These 2 components are very important in the labor market, right? So concept of labor markets, the labor market also known as a job market. Labor market also known as job market. अभी देखो मतलब मैं आपको मतलब यहाँ पे आपके CDOE में फैकल्टी हूँ, इस वजह से भी आपको बता सकती हूँ कि मतलब एक आपका मतलब एक फोकस क्या होना चाहिए पढ़ाई का भी, जो कि मतलब जो रेगुलर के प्रोफेसर है, जो मतलब वो पीसी सर वगैरह हमने यहाँ पे अपॉइंट किए थे, वो आपको उतना नहीं बता सकते, राइट? सो अभी देखो आपका जो इंटरनल एग्जाम रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, MCQ टाइप रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर. Means question will be there and 4 options will be there. So you have to choose the correct option of that question. Got it?
सो आप जब पढ़ाई करोगे, आपके लेक्चर्स हो जाएंगे, तो आपको सिमिलरली क्या करना है कि मतलब कौन सा क्वेश्चन जिसपे कि मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है. सो नाउ इट्स द फर्स्ट लाइन, द लेबर मार्केट आल्सो नोन एज द जॉब मार्केट, राइट? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है ना? मतलब आपको मैं जो आपको बता रही हूँ वो मतलब क्लियर तो हो रहा है ना? यस मैम. तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेबर मार्केट आल्सो नोन एज, और वहां पे मतलब यहाँ पे ऐसा ब्लैंक्स ये आ सकता है. सो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लेबर मार्केट. उसके मतलब 4 ऑप्शन दे रहे थे आपको, क्या उसका आंसर क्या रहेगा? जॉब मार्केट. गॉट इट? ऐसे आपको सिमिलरली पढ़ाई करनी है, बिकॉज आप वर्किंग हो, सो यू हैव टू सेव योर टाइम. सो आपको एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा. The labor market, also known as the job market, refers to the supply of and demand for labor. जो मतलब क्या निर्देशित करता है? refers means क्या निर्देशित करता है? labor market, लेबर का मतलब सप्लाई एंड डिमांड, इन विच एम्प्लॉइज प्रोवाइड द सप्लाई, एम्प्लॉइज प्रोवाइड द सप्लाई एंड एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड द डिमांड. एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर, इसमें क्या फर्क है? बिकॉज ये दिखने को तो बस एक आर का फर्क है इसमें, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर. The one who provides the job is employer, and the one who does the job or needs the job is employee. This is Gauri. Okay, so you are working anywhere? Yes, I am. So tell me what you are and what your company. I am an employee, which is also called labor, and the one who has provided me the job is an employer. एग्जैक्टली. सो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था जो मतलब काम मतलब या मांगते हैं. सो वी आर एम्प्लॉई, एंड विच मतलब जो कंपनी हमको जॉब देती है वो रहती है एम्प्लॉयर. गॉट इट? यस. सो आपको ये लेबर मार्केट का कॉन्सेप्ट सिंपली समझ में आया? हिंदी वाले, मराठी मीडियम वाले या फिर इंग्लिश मीडियम वाले, अगर आपको कहीं पे इसका डेफिनेशन लिखना है, सो कैन यू राइट? Yes, ma'am. I understood. ओके. सो ये मतलब क्या है? लेबर मार्केट विच इज ऑल्सो नोन एज अ जॉब मार्केट, डिमांड फॉर लेबर इन विच सप्लाई of labor and employer provide the demand, right? वो डिमांड करते हैं, इसलिए उनका मतलब कहीं पे भी रिक्रूटमेंट का एड आता है, वो डिमांड है उनकी, बिकॉज दे वांट एम्प्लॉय, राइट? It's a major component of any economy and is intricately linked to the market for capital, goods and services. Labor market refers the supply and demand for labor in which employees provide the supply and employers provide the demand. ये हमने देखा. And the labor market should be viewed at both macroeconomic and microeconomic level. Actually, it's a point which covers it both. Means you know very well because you choose and you are doing masters in economics, so you know there are mainly 2 branches of economics, which are macroeconomics and microeconomics. You know. Yes, ma'am. So, Miss, can you tell me who coincided these two subjects? Who? First time? Adam Smith. No. In 1931, Ragnar Frisch. Ragnar Frisch, yeah. Because you should know it's a basic. रैगनर फ्रिश ने ही बताया था कि इकोनॉमिक्स की मेनली 2 ब्रांचेस है, विच आर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट टाइम
आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आया, तो अगर आप लोग किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को बता रहे हो, और किसी ने पूछा कि मैम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब किसने बताया था फर्स्ट टाइम कि ऐसी ब्रांचेस होती है और कब बताया था, सो यू शुड नो। इन 1931 रैगनर फ्रिश से देयर आर टू ब्रांचेस, मतलब इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। गॉट इट? यहाँ तक आपको समझ में आया? 1.2 पॉइंट आपको जो है इंट्रोडक्शन का, गॉट इट? Each and everyone, I am asking to each and everyone, got it? Yes, ma'am. I got it. Got it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मैं आपको मतलब ट्राई करूंगी ऐसा पढ़ाने का कि मतलब आपको बुक जब पढ़ोगे तब ऐसा सारा क्लियर हो जाए, एक रिविजन टाइप। So now we'll see characteristics of labor markets. अभी characteristics को एक मतलब एक सिमिलर वर्ड जैसे कि फीचर्स भी बोल सकते हैं कहीं कहीं पे, मगर फीचर्स पूछा तो कंफ्यूज मत हो जाना कि what are characteristics and what are features. Characteristics is similar word to features, right? Characteristics और features of the markets. पर मराठी मीडियम के स्टूडेंट अगर रहेंगे तो उनके लिए ये रहेगा श्रम बाजाराची वैशिष्ट्ये। So we'll see here. What? Will there be a lengthy answer also, like characteristics of features? Will they ask us to write the characteristics and features? Yes, exactly. Actually, you have a theory paper also and this MCQ type internal exam also. Okay. So you have to write lengthy questions also. Okay. This question will be asked, right, that explain the characteristics of labor market. So you have to write their in the last I will tell you how to write the answer of question proper and means in brief कैसे लिखना है, I will tell you. Don't worry about that. I will take one session of that. It will help you. Thanks. Characteristics of labor market. Listen, mute yourself, please. Mute yourself, Fatima, Renu Yadav. First characteristics is labor market is concerned with a labor. Obviously, अगर हम labor market बोल रहे तो labor market से ही concern होगा, और जो कि एक labor क्या है, human resource है. Second, relationship between the buyer and the seller in labor market is likely to be continued for some time. सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो बायर्स मतलब खरीदते हैं, सेलर्स जो बेचते हैं लेबर मार्केट में, उनकी जो रिलेशन मतलब उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो चलता ही रहता है इन द लेबर मार्केट. It's a process in which a balance between supply of particular kind of labor and demand is maintained. ऐसा होता है क्या? होता है क्या? लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई बैलेंस रहता है क्या? Not necessary. No, ma'am. Not Sometimes, ma'am. समवेयर रहता है. समवेयर होता क्या है? लेबर डिमांड इज मोर देन लेबर सप्लाई. रहता है ना कि जैसे कि लेबर डिमांड बहुत है आप जहाँ पे वर्क करते हैं और सप्लाई कम है, जिनके काम करने वाले कम लोग हैं. सो होता ऐसा है कि वहाँ पे वर्कलोड मतलब जो जितने भी एग्जिस्ट एम्प्लॉइज है उन पे आ जाता है, और इनकी वजह से वो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो माइनस में चला जाता है, कम होता है. राइट? Yes, ma'am.
ये आवाज किसकी आ रही है बीच बीच में? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. या वाशीच्या पोस्टवर लागत आहे. तो ये बैलेंस होना चाहिए, बट होता नहीं है. It is a market where wage rate differ for same kind of work due to lack of perfect mobility. Perfect mobility की क्या कॉन्सेप्ट है? परफेक्ट मोबिलिटी मतलब जो लेबर रहते हैं, लेबर वो मोबाइल होने के लिए, जैसे कि मुंबई से छत्रपति संभाजीनगर या फिर मुंबई से अमरावती या फिर आउट ऑफ स्टेट की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, बिटवीन स्टेट, मतलब लेबर मोबाइल होने के लिए यहाँ से वहां ट्रांसफर होकर जॉब करने के लिए रेडी रहते नहीं है. परफेक्ट मोबिलिटी मतलब रहती नहीं है, क्योंकि उसके रीजंस अलग अलग रहते हैं. फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, या फिर उनको ये सिटी मतलब अभी हैबिचुअल हो जाती है. इसके बहुत सारे रीजंस है. तो ऐसी परफेक्ट मोबिलिटी होने नहीं होती है. इसलिए रहता क्या है, वेज रेट जो है, सैलरी जो है वो डिफर रहती है, अलग अलग रहती है. जैसे कि मुंबई में ज्यादा रहती है, अमरावती में कम रहती है, और कभी कभी मतलब अमरावती में ज्यादा हो सकती है मुंबई से. लेकिन वो जो मुंबई का कैंडिडेट है, जैसे कि आपको अगर ऑफर आया अमरावती का, तो आप क्या सोचोगे, सैलरी ज्यादा है लेकिन वहां पे मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मुझे ये सिटी अब अच्छी लगती है. ऐसे रीजन रहते हैं ना. इज इट ट्रू? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वेज रेट डिफर रह सकता है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या रहता है, अभाव रहता है, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी. क्योंकि लेबर जाने के लिए किसी मतलब यहाँ से वहां परफेक्टली मोबाइल होने के लिए, परफेक्टली शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं रहता है. इसकी वजह से लेबर मार्केट्स आर नॉर्मली लोकल मार्केट्स. स्थानिक बाजार, लेबर मार्केट, श्रम बाजार रहते हैं, नॉर्मली लेबर लोकल मार्केट्स रहते हैं. इन लेबर मार्केट प्राइस रहता है ना यहाँ पे. प्राइस मतलब वेज रेट. हाँ, लेबर मार्केट की प्राइस मतलब लेबर रहती है, मतलब बहुत सारे जैसे फॉर ईयर और 5 ईयर ये सेम रहती है. आपको जब मतलब जहाँ आपको हायर किया जाता है, वहां पे आपको बोला ही जाता है कि 1 साल के लिए आपकी सैलरी इतनी रहेगी, फिर आपका 5% बढ़ा दिया जाएगा या फिर 10% बढ़ा दिया जाएगा. राइट? ऐसा होता है ना, आपका जब ज्वाइन करते हैं वैसा बोलते हैं ना. या मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो लेबर मार्केट का पेपर है बहुत इजी है, हम सबके रिलेटेड ही है. हम अपने ऊपर से समझ ले तो हमको बहुत जल्दी समझ में आएगा. राइट? इतना डिफिकल्ट ये पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये हमारे ही ऊपर है. ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशनशिप ही है. लेबर मार्केट इज नथिंग बट अ प्लेस वेयर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इंटरेक्ट एंड व्हाट contribute in the production process. And it is not homogeneous. We find different types of worker in labor market. मतलब homogeneous नहीं रहते हैं, मतलब लेबर जो है, श्रमिक, लेबर, एम्प्लॉय, वो एक जैसे रहते नहीं है. क्योंकि ऑब्वियसली आप में कुछ अलग क्वालिटी है, दूसरे में कुछ अलग क्वालिटी है. भले ही आपने क्वालिफिकेशन सेम ले रखा है, लेकिन क्वालिटी हर एक की अलग अलग होती है. किसी का हैंड किसी और चीज में होता है, किसी का हैंड किसी एक और चीज में होता है. तो इसलिए लेबर के मतलब जो है उसके अलग अलग टाइप है. ये इसकी एक वो आप आके देखेंगे भी. टाइप्स ऑफ वर्कर्स इन लेबर मार्केट क्या होते हैं, वेरियस होते हैं. In the labor market, workers try to increase their strength by forming their trade unions and resort to collective bargaining. रहती है ना आपके कंपनी में भी, शायद जहाँ पे मतलब आप काम करते हो वहां पे भी आपकी एक ट्रेड यूनियन रहती होगी. है क्या कोई यूनियन आपकी? have you heard about the trade union, labor union? Yes ma'am, we've heard. Yes, but ma'am. मतलब अगर हमको अब हमारे हक जो है,
अगर कहीं पे मिलते नहीं हो तो उसके लिए भी एक यूनियन रहती है, जो वो यूनियन क्या करती है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का एक दुआ रहती है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वहां पे वो मेंटेन करने का काम करती है। देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इन द लेबर मार्केट, मतलब बहुत जगह होता है लेबर मार्केट में, लेबर का एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब अभी मैं एक ही तरफ से जाऊंगी, वो कि जैसे कि मैंने बोला था, डिमांड ज्यादा होने के बाद भी सप्लाई जब कम रहता है, मतलब डिमांड जब सप्लाई से लेबर डिमांड लेबर सप्लाई से जब ज्यादा होती है तो वहां पे ऑब्वियसली लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ही है, क्योंकि वो ज्यादा मतलब काम, देखो काम तो उनका अड़कता नहीं है, जो एग्जिस्टेंस लेबर सप्लाई है मतलब उनसे वो करवाते ही है, राइट। तो आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना, जहाँ पे मतलब आपको 5 घंटे 6 घंटे का ड्यूटी है, वहां पर आपको 1-2 घंटा काम करना पड़ता है, या फिर छुट्टी के दिन भी घर बैठ के, अभी वो कोविड के टाइम से तो बहुत आ गया वर्क फ्रॉम होम, तो घर से भी काम करना पड़ता है, राइट। तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ही ना, समझ में आया एक्सप्लॉयटेशन का कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. और आप एग्री हो इससे? Yes, ma'am, it happens. Yeah, because it's a reality. Wages, terms and conditions of employment, etc. are determined in the labor market through bargaining tussles between workers and employers. ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हो तो तब भी आपसे ये सब बताया जाता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगी, मतलब आप रहते हो वर्कर, एम्प्लॉय, और जो देने वाला रहता है एम्प्लॉयर, आपके बीच में तय हो जाता है ना। Yes, ma'am. ये आप कभी मतलब कहीं पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हैं। So labor cannot move with the same ease and facility with which goods are transported from one place to another place. There is lack of mobility of labor. ऊपर जैसे बताया था, जैसे कि हम goods and services, because ये चीजें रहती है, इनको हम जैसे कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से गुजरात या फिर इंडिया से मतलब यूएस से ऐसा ट्रांसपोर्ट करते हैं, वैसे हम लेबर को नहीं कर सकते हैं, मतलब लेबर को हम मोबाइल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, लेबर इतने जल्दी मोबाइल नहीं होता है, परफेक्ट मतलब मोबिलिटी है नहीं, क्योंकि सैलरी पैसे से भी ज्यादा मतलब रहती है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब रहता है, इसलिए लेबर इतना इजीली मोबाइल नहीं होता है। लेकिन अभी मतलब ऐसी कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है तो लेबर कहीं पे भी जाने के लिए तैयार है ना। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि अभी मतलब अनएम्प्लॉयड पीपल भी इतने हैं कि उनको ऐसा है कि मुझे कहीं पे भी जॉब मिल जाए, बस मिल जाए, महाराष्ट्र में हो या आउट ऑफ महाराष्ट्र हो, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। आर यू एग्रीड? Yes, yes. Labor market is essentially an imperfect market. It is not a perfect market. एक imperfect market है, अपूर्ण बाजार। ये जो क्या है, वो अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में imperfect market का, monopolistic competition का, ये जो है एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, राइट? सबको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ में आए, क्वेश्चन पूछा जाए तो आई होप सो यू ऑल कैन आंसर, राइट? Yes. Yeah. Now, types of labor markets. What are the types of labor markets? In a labor market, labor is supplied by household and demanded by firms. Labor market in India can be classified into following types. First is a national labor market. What is national labor market? सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, नेशनल मतलब नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते इसको। बट जैसे यहाँ पे दिया भी है, देखो कि नेशनल लेबर मार्केट इज वन इन विच मोस्ट जॉब सर्च बाय एम्प्लॉयर्स एंड फर्म्स टेक्स प्लेस ऑन अ नेशनल लेवल।
मतलब अब एक हम जैसे कि बोलते हैं इंडिया को हम अगर नेशन मतलब एक पकड़े नेशन, तो मतलब इंडिया के बिटवीन ही अंडर इंडिया मतलब जो जॉब सर्च किया जाता है जैसे कि एम्प्लॉयर के द्वारा डिमांड किया जाता है उसको हम नेशनल लेबर मार्केट बोल सकते हैं। द मार्केट फॉर कॉलेज प्रोफेसर्स, टॉप मैनेजमेंट पोजीशन इन लार्ज कारपोरेशन एंड सिमिलर कारपोरेशंस एंड आर नेशनल लेबर मार्केट्स। Chandravan, do you have any question? So please, it's a responsibility to unmute yourself, and if you have a question only that time unmute because it's disturbing us. Okay. सो नेशनल लेबर मार्केट में मीन्स ऐसा लेबर मार्केट मतलब जो नेशन में है, जैसे कि आपकी जो भी कंपनी है वो आप एक नेशनल लेबर मार्केट में ही काम कर रहे हैं ना, आप जो है नेशनल लेबर मार्केट में ही काम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल लेबर मार्केट मतलब कि जो कि आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया में अगर आप कहीं काम करते हो तो आप इंटरनेशनल लेबर मार्केट का पार्ट हुए। अगर इंडिया में काम कर रहे हो तो नेशनल लेबर मार्केट का काम, नेशनल लेबर मार्केट में आप काम कर रहे हो। उसमें और भी एक रहता है, ये जस्ट टाइप है लोकल लेबर मार्केट। लोकल लेबर मार्केट मतलब अब इंडिया छोड़ो, आप मुंबई में ही काम कर रहे हो तो आप लोकल लेबर मार्केट में काम कर रहे हो। आप मतलब इसके ही आप मुंबई में रह रहे हो और मुंबई में ही काम कर रहे हो। आई एम गोइंग टू रिमूव मारिया वॉट एवर। मुंबई के आप मतलब मुंबई में रहने वाले और मुंबई में ही काम कर रहे हो तो आप मतलब कौन से इसमें काम कर रहे हो? लेबर मार्केट में, लोकल लेबर मार्केट में। मोस्ट जॉब्स मींस देयर आर 5 टाइप्स। Mainly keep in your mind there are 5 types of labor market which are national labor market, local labor market, internal labor market, primary labor market and secondary labor market। जब लिखना है तब ये 5 टाइप अगर आपको पता है और उसका मतलब मीनिंग अगर पता है तो आप लिख सकते हो। और क्वेश्चन लिखते समय आपको ना मतलब एक बात ध्यान में ही रखनी है, कभी कभी होता ऐसा है कि लिखने के फ्लो में हम क्या होता है कि आपको जो मतलब याद आने वाला है क्योंकि जो आपके दिमाग में है वो आप मतलब एक पॉइंट लिखने के बाद भूल जाते हो। तो जो भी पॉइंट है आपको एक प्लेस में लिख के रखने हैं, जैसे कि टी डायग्राम वगैरह बना के। अगर आपको पूछा गया कि डिस्कस द लेबर टाइप्स ऑफ लेबर मार्केट, सो यू हैव टू राइट देयर मींस यू हैव टू मेक देयर टी डायग्राम ऑफ दिस 5 लेबर मार्केट्स। या फिर एक के एक नीचे जैसे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेबर मार्केट विच आर फॉलोइंग, और लिखना है 1 नेशनल लेबर मार्केट, 2 लोकल लेबर मार्केट, 3 इंटरनल लेबर मार्केट, 4 प्राइमरी लेबर मार्केट एंड 5 सेकेंडरी लेबर मार्केट। और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन करना है। ये बहुत टाइम भी सेव करता है और मतलब आपको पूरा आंसर लिखने में आपकी हेल्प भी करता है। आर यू एग्रीड? Yes, ma'am. अच्छा, 1 स्टूडेंट ये बोल रहे कि टी डायग्राम। अरे टी डायग्राम मतलब देखो क्या होता है, जैसे पेड़ रहता है, पेड़ है ना आपका, पेड़ को बहुत सारी फांदियां रहती है, ब्रांचेस रहती है, राइट? रहती है ना। तो आपको ऐसा एक जगह पे उसका एक बेस बना के उसको मतलब रहता है ना, उसमें उसको ऐसा एक पाई डायग्राम जैसा, राइट? क्या पाई डायग्राम जैसा? हाँ, पाई डायग्राम जैसा भी बोल सकते हो उसको आप। मतलब आप उसके अलग अलग टाइप रहते हैं ट्री डायग्राम के, आप वो देख लेना। वो अगर बनाते हो, अगर नहीं मतलब वो एक स्टूडेंट की एक्टिविटी रहती है, स्टूडेंट का एक वो इंटरनल उसका ओन नॉलेज रहता है, क्रिएटिविटी रहती है। स्टूडेंट बनाते हैं वैसा, मतलब वो अगर बनाए तो इवैल्यूएटर के भी थोड़ा मतलब एक
एक ही स्पॉट में पता चलता है कि उसको इसका पूरा आंसर पता है, इसने उसके सारे टाइप यहाँ पे कवर किए हैं। सो आगे मतलब एक्सप्लेनेशन आपका आप लिख सकते हो और ये आपको हेल्प करेगा। और अगर किसी को ट्री डायग्राम का पता भी नहीं, मतलब ये मतलब नहीं भी एक सपोज में समझ आया, तो भी मैंने आपको वो एक सेकेंड ऑप्शन भी आपको बता दिया। एक सिंप्लीफाई, आप इसके एक के नीचे एक पॉइंट भी लिख सकते हो। समझ में आया? Yes, ma'am. और ऐसा आपको करना ही है, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम, मतलब आपने एग्जाम दिया तो आप एग्री होंगे ही, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट थी, नाउ यू आर अ स्टूडेंट। तो ये सबका प्रॉब्लम रहता है, भूल जाते हैं हम, पढ़ाई करके आते हैं, सब पता रहता है कि 5 टाइप्स, और हमारे भी प्रोफेसर ने हमको बताया है, तो नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू, राइट? Internal labor market. An internal labor market is said to exist within a firm if the firm fills higher level position in the firm primarily by promotion from within the firm. मतलब एक जैसा कि एक सिमिलर प्रोडक्ट करने वाले भी जो होते हैं ना कंपनियां, जैसे कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के और सारे ब्रांचेस है कहीं पे, जो भी है, मतलब जहाँ पे भी आप काम करते हो, उसी सेम मतलब गुड्स का या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन करने वाले आपके कंपनी के ब्रांचेस रहते हैं। उसमें अगर उसके विदिन ही आप कहीं पे काम करते हो तो उसको इंटरनल लेबर मार्केट बोल सकते हैं। प्राइमरी लेबर मार्केट, जॉब्स इन प्राइमरी लेबर मार्केट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वेज and stable employment relationship. Example of job in the primary labor market includes accountant, lawyer, teacher. ये हो गया प्राइमरी लेबर मार्केट के एग्जांपल्स। प्लम्बर। सेकेंडरी लेबर मार्केट, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी लेबर मार्केट रिसीव लो वेजेस। प्राइमरी और सेकेंडरी का एक सिमिलरली डिफरेंस भी समझ लो। यहाँ पे हाई वेज रेट रहता है प्राइमरी में, सेकेंडरी में लो वेज रेट रहता है। एंड एक्सपीरियंस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, वर्कर्स इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, गैस स्टेशन अटेंडेंट्स, डिश वॉशर्स। अब इनको एक तो मतलब वेज रेट जैसे कि पैसे भी कम दिए जाते हैं, और उनको ये मतलब फिक्स ही है, ऐसा कोई नहीं है, इनको बदला भी जा सकता है। आर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी लेबर मार्केट, ये रहता है सेकेंडरी लेबर मार्केट, और जहाँ पे भी मतलब उनको पैसे भी कम दिए जाते हैं, वेज रेट कम दिया जाता है, और उनका जो अनस्टेबल रहता है जॉब। और प्राइमरी में क्या रहता है, सैलरी हाई रहती है और जॉब स्टेबल रहता है। जैसे कि एक स्टूडेंट ने हमको क्वेश्चन पूछा इंटरनल लेबर मार्केट के एग्जांपल, कोई बता सकता है इंटरनल लेबर मार्केट के क्या मतलब एग्जांपल बताओ कोई? मींस प्रमोशन और it's like promotion or increment. voice is breaking. Promotion within a company. Yeah, ma'am. Am I audible right now? Yeah, now you're audible. No, it is like promotion in internal company, within the company, like increment, like some position are available for getting high payment and high responsibilities. Like if some like अगर कोई TL मिसिंग है एक टीम में, तो वहाँ पे एक जॉब क्रिएट होता है। ये हो गया एक इंटरनल लेबर मार्केट का एग्जाम्पल। Exactly. Right. So आपको यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. मतलब ये इजी है जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, ये देखो, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको करने ही है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने वाला ही है, और इसमें MCQ क्वेश्चन भी जो बनते हैं
मतलब अभी देखो क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अगर पूछा जाए मतलब कैसे भी पूछा जा सकता है। अभी आपको टाइप्स पता है लेबर मार्केट्स के 5 टाइप है, राइट? तो आपको मतलब ऐसा पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लेबर मार्केट, और अगर आपको आप पहचान सकोगे बिकॉज यू नो टाइप्स ऑफ लेबर मार्केट, सो कौन सा नहीं है ये आप बता सकते हो, राइट? तो स्टडी ऐसी करो कि मतलब आपको उस पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ये होने वाला है, हाँ एग्जाम आपका 25 मार्क्स का एमसीक्यू एग्जाम है आपको। तो उस टाइम में आप ये जब पढ़ोगे तभी आपको मतलब उस पे भी फोकस करना है, क्योंकि उसी बुक्स में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर के भी नहीं आएंगे, इसी बुक में से आएंगे, राइट? नाउ सर्च इन लेबर मार्केट। सर्च इन लेबर मार्केट्स, श्रम बाजारातील शोध, ये आपको पढ़ के लेना है जो है ना। सर्च इन लेबर मार्केट, इस पे अगर आया तो आपको एक नोट आ सकती है, किसमें? सर्च इन लेबर मार्केट में आपको पढ़ के लेना है। और इसमें जो भी है फिर वो जो सर्च टाइम रहता है वो मतलब जो डिफेंस करता है उस पे फिर वो मतलब पॉइंट्स आएंगे उसमें, रिजर्वेशन प्राइस, कॉस्टली सर्च, प्राइस एंड क्वालिटी वेरिएंस, रिस्क एवर्जन, ये आपको इसमें आएगा। तो इसमें बेसिकली आपको दो जो पॉइंट है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे आपको फोकस करना है। मतलब अगर आपको मैंने होमवर्क दे दिया तो आप वो करोगे? यस मैम, करेंगे। हाँ, तो अभी मतलब आपको ये टास्क है कि 5 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन लिखने को देती हूँ मैं, और आपको लिखना है, ऐसे लिखना है उसको, मतलब बुक्स में ही लिखना है ऑब्वियसली, क्योंकि बुक्स आपके पास है, आप सबके पास है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे लिखना है कि 5 मार्क्स के लिए देखो आपको नेसेसरी रहेगा बैक टू बैक पेज, एक सिंगल जो है बैक टू बैक पेजेस में से सिंगल साइड 2 पेजेस और बैक टू बैक वो सिंगल पेज, ऐसा पकड़ सकते हो आप उसको। इतना आपको 5 मार्क्स के लिए लिखना ही लिखना है। और कभी कभी अगर क्वेश्चन कम पड़े, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर क्वेश्चन आया तो वो सिंगल साइड पेज में भी हो सकता है, वो हैंडराइटिंग पे भी डिपेंड रहता है। किसी किसी का हैंडराइटिंग स्मॉल रहता है, किसी का मतलब हैंडराइटिंग बड़ा रहता है, तो उसको मतलब पेज ज्यादा लगता है, स्पेस ज्यादा लगता है। तो आपको 2 क्वेश्चन मतलब आपके ही आप लिख के रखो, ये आपको मतलब बाद में भी काम आएंगे, क्योंकि बुक में जितना सारा दिया है, मैं पहले भी आपको इतना बता रही हूँ, बुक में जो आपको जितना दिया है, जैसे कि टाइप्स ऑफ लेबर मार्केट, वहां पे बहुत सारा दिया है, तो उसका लाइन एंड लाइन आए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आपको जो टाइप्स है वो 5 टाइप्स आपके कवर होने चाहिए उसके, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपका ओन होना चाहिए। मतलब आपको वो सारी चीजें रेसिडेट नहीं करनी है, जस्ट आपको वो जो टाइप्स है 5 टाइप्स वो आपको रेसिडेट करने हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं कि विच आर 5 टाइप्स, राइट? जैसे कि नेशनल लेबर मार्केट, दूसरा कौन सा है? इंटरनल लेबर मार्केट, हाँ लोकल लेबर मार्केट, ते आम्हाला सांगितलं होतं मुलांना कसं शिकवायचं ते इंग्लिश